Good evening, viewers from across the world. This is Vivekanand Jha, an author and a public intellectual. Indeed, it is a bestowal of divine grace because I am here at Matri Sadan, the Sanctum Sanctorum. As you people know that I have been here for last 2 months, trapped in the national lockdown. Here I have been living at the lotus feet of our His Holiness Revered Swami Sivananji. And today it is another pleasure and indeed a privilege, because sitting on the bank of Ganges, and today we have closeted with me one of the very renowned doctors who has specialized, innovated, and invented something very new. But before that, before introducing him to all of you, I would just like to say something, some sort of about his background. I have been knowing Dr. Sri Vijay Barmaji for almost around 8 9 months, because one of my very close relations, Sri B.K. Jha, happens to be an engineer from Mekon. Now I have seen very closely, because many a times he would come down to Ranchi and I would go to Delhi. Often we met each other, and I have seen, in those days he was even unable to speak. And all of a sudden, by way of a miracle, I would see the sort of transformation in him. He was not only able to speak, able to deliver a longest speech, but this apart, I have seen some sort of, a radiancy at his face, and really some sort of very noticeable transformation that occurred in him. I asked Sri B.K. Jhaji as to what, was the cause that he would attribute for this, for this complete, makeover. He said to me that he had undergone a sort of treatment from Dr. Vijay Barmaji, and that was the reason he attributed for the cause of an immense change in him. And then I also, since then onwards, I was nursing a sort of ambition, desire to meet him, and it was all by way of divine grace that here, sitting, in the Mathisadan, the Sanctum Sanctorum, here today, and I am having that sort of privilege, that Sri Vijay Barmaji on the bank river Ganges. You can see it is a unique nature, because Dr. Sri Vijay Barmaji has been specializing, has been an innovator par excellence, because he has innovated an integral approach, being a qualified medical practitioner from holding an MBBS degree, as well as pediatrician. But this apart, he has been specializing in Ayurveda, and that brought about a tremendous change as regards the recovery of the patients from different parts of the country. That is a unique thing. And today, because the corona, this scenario, the situation that entire world is passing through, that is the corona. And when Honorable Prime Minister and most of the erudite people say that Mother Ganga has the solution, the panacea for the cure of this corona, Dr. Vijay Barma, a sort of ambassador with all that sort of innovative approach, today he will share all his experience and all his innovation, the sort of innovative works with us. So विजय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत, देखिए कितनी बड़ी सिनारियो में आपने ही मुझे कहा कि हम इस पे बैठते हैं बिना चेयर का. दिस इज इंडीड ए वेरी वेरी स्पेशल sort of interview for me, sitting on the grass, that also across the Ganges, across the bank of river Ganges. Indeed, my special prostration, rather salutation to Mother Ganga. तो सर, ये जो आपने इतना मतलब एक इंटीग्रल अप्रोच आपका रहा है, ये कब आपने एक एलियोपैथ डॉक्टर, आपने टाटा मेडिकल, वहाँ पर आपने अपना काम शुरू किया, फिर आप हरिद्वार में, चूँकि आपका बर्थ प्लेस था, आप यहाँ पर मेडिकल, पहले आप एलियोपैथी का काम शुरू किए, फिर अचानक आप आयुर्वेद की तरफ मुड़ गए. ये सब के पीछे क्या कारण था, थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को. धन्यवाद विवेकानंद जी. कुछ बताने से पहले मैं माँ गंगा का ज़रूर आशीर्वाद लेना चाहूँगा, और आपको भी हार्दिक धन्यवाद कि आप इसके संवाद के वाहक बन रहे हैं, और जो हमारे अंदर ये जो सब चल रहा था, इसको एक बाहर निकाला. मैंने अभी तक इसमें किसी को अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया. 1985 से मैंने यहाँ पे एक क्लिनिक में अपने फादर के साथ, जो कि यहाँ के रिनाउंड MBBS डॉक्टर JP वर्मा KGMC से पास किए थे, तो हम लोगों की पीढ़ी दूसरी है जो एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काम कर रही है. और उसके बाद करते करते 85 से लेके बच्चों में जनरली जो बीमारियां होती हैं वो मैक्सिमम वायरल फीवर होती हैं. वायरल फीवर, उल्टी, दस्त, नुमोनिया, ये एनकेफलाइटिस,
ग्रोथ फेलियर, माल न्यूट्रिशन, हम लोग इसी से जूझते हैं। और हमारे सिस्टम में, एलोपैथिक सिस्टम में बहुत अच्छा है, जिसमें डायग्नोसिस है, जिसके अंदर ट्रीटमेंट भी है, साइंटिफिक एक बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ कमी है। तभी से हम, क्योंकि गंगा के किनारे हैं, हम आयुर्वेद को भी जानना चाहते हैं, हम नेचर को भी जानना चाहते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारे आयुर्वेद में कुछ ज़रूर ऐसा होगा, ये सोचते हुए, और इसी बीच में हमारे फादर केरला जाया करते थे जब उनकी एज हुई, वो मुझे पंचकर्मा के बारे में बताते थे। तो 2013 में, 2010 से मैंने ये काम शुरू किया और इंटीग्रेशन करना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और 2012 में मुझे पहला केस एक मिला कैलकाटा में, आईसीयू के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट में, एक महिला जिसकी उम्र करीब 40 साल की उम्र थी, नाम संगीता। वहाँ से कॉल आई कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें लंग्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। कोरोना में तो अभी फाइब्रोसिस वगैरह होती है, थ्रोम्बोसिस, पल्मो, ये सब चेंज हो रहा है, वैसे ही ये क्रोनिक बीमारी है। और उसमें लास्ट स्टेज में पेशेंट को जब ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, तो वेंटिलेटर देते हैं और हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देती हैं, और लास्ट स्टेज डेथ। वहाँ मुझे इंटीग्रेट करने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शी इज़ गोइंग टू डाई विद इन 48 आवर्स। मुझे यहाँ से एक कॉल आई, वहाँ से उन्होंने कहा आप तुरंत आ जाइए। एयर फेयर दिया गया। एयर से मैं शाम को 7:30 बजे साल्ट लेक सिटी में IRS हॉस्पिटल, वहाँ पे पहुँचता हूँ। मुझे बुलाने वाले यहाँ के एक माँ सदन के एक डिसिपल थे, नाम था अनूप खेमका जी। और 7:30 बजे मैं उनके बेड पे जब गया तो उसका पूरा स्वेलिंग थी, फेस पे भी स्वेलिंग, पूरे पे हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के जाने के बाद भी साइनोसिस थी, और ब्लड प्रेशर 180 130 था। दैट इज़ फॉर श्योर था कि 2-3 घंटे या रात तक इसकी डेथ हो जाएगी। शाम को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने में हमने पंचकर्मा के कुछ प्रोसीजर्स किए, जिसके अंदर स्नेहन और बस्ती होता है। बस्ती इज़ ए पर रेक्टल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, और उस बस्ती में मैंने गंगा जल भी इस्तेमाल किया था, दूध भी इस्तेमाल किया था। और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से जब हमने किया, क्या यूरिन भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें, बस्ती में? वो तो बात की बात है। फिलहाल हम 2012 की उस घटना को जी, और उसके बाद मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ चेंज आया है। मैं वहीं पे सो गया, उसने मुझे जाने नहीं दिया। पेशेंट ने इशारा किया कि नहीं तुम यहाँ। 12 बजे मैं देखता हूँ कि वो बहुत आराम से सोई हुई। मैं वहाँ से चला आया और अगले दिन सुबह जब 9 बजे गया, पेशेंट की कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो गई थी, उसकी स्वेलिंग वगैरह सब। ये मेरी डॉक्यूमेंटेड वीडियोग्राफी है। उसको देख के मेरा दिमाग एकदम से ब्लोन आउट हो गया, मैं शॉक में हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं और क्या इसके रिजल्ट्स हैं। वो पेशेंट 36 आवर्स में काफ़ी अच्छी हो गई थी, उसने वो दिया था, क्रॉनिक प्रॉब्लम थी। उसके बाद में हमने, वो पहली रिकॉर्डिंग हुई मेरी वीडियो की, फिर मैंने पलट के नहीं देखा। 2013 में यहाँ डेंगू एपिडेमिक हुआ उत्तराखंड में, वो करीब 1200 की डेथ हुई। डेंगू भी एक ऐसी वायरल फीवर है जैसे कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, सार्स है, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। तो डेंगू में हमने जब इन दोनों को देखा तो मैंने 74 केसेस ट्रीट किए, जिसके अंदर प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000 तक था, जो कि एक डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग आने लगती है, और वो पेशेंट की कंडीशन इतनी सीरियस होती है कि कोई भी एक छोटा हॉस्पिटल उसको हाथ नहीं लगाता और हायर सेंटर पर रेफ़र कर देते हैं, जिसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टर्शियरी स्टेज में प्लेटलेट देना है, इंट्रावेनस फ्लूइड देना है, एडमिशन देना है। लेकिन जब एक के बाद ठीक होते चले, 74 केसेस हमने जब कर लिया, देन आई थॉट कि इट इज़ ए साइंटिफिक एविडेंस, बिकॉज इफ़ वी वांट टू exert or establish one principle of scientist, so in a same circumstances repeatedly in the same thing, if we get the same result, so it is a scientific fact. जब हमने ये इसको गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को और उस समय हरीश रावत थे उनको प्रेजेंट किया, तो उनको भी ऐसा लगा, और पहला मेरा एग्जामिनेशन हुआ जिसमें इन्होंने, उत्तराखंड सरकार ने एक 10 डॉक्टर्स की कमेटी बैठाई जी। ये 2015 का किस्सा है जी। और जिसमें उन्होंने कहा कि, इन सब ने कहा कि इट इज़ ए न्यू इनोवेशन, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद में घटनाक्रम चलती रही, काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है इसके लिए, यहाँ तक कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि मैं हैरान हूँ
जब इनको मुझे ये एक परमिशन मिल गई और एक BHU के अंदर सेमिनार हुआ जो कि इन्फ्लामेशन पे था। आयुर्वेद में इसको शोथ कहते हैं, शोथ, और हम लोगों के यहाँ इन्फ्लामेशन कहते हैं। सारी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो इन्फ्लामेशन से होती हैं। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, अभी जो कोरोना क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द होल बॉडी है। इनिशियली फेज़ में रेस्पिरेटरी सिस्टम से इन्वॉल्व होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन कैपिलरीज, देन पल्मोनरी, देन अदर सिस्टम्स। तो होल इन्फ्लामेशन, जैसे आग लग गई, इसको हम शोथ कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये सिस्टम इज़ टोटली एंटी इन्फ्लामेटरी। इसको मैंने पंचकर्म ICU इंटीग्रेशन नाम दिया, क्योंकि अगर हम एक एक्यूट फेज़ में, जिस समय लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो रही होगी, वहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये वर्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये टोटल ही अपसाइड डाउन कर देगी। और इंटीग्रेशन होने के बाद अगर हम दोनों सिस्टम को साथ लेके चलते हैं तो एक मिराकिल है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। अब जब उस दिन वहाँ पे ये सेमिनार था, ये घटना है 2017 की, तो वहीं पर डॉक्टर पुष्कर रंजन थे जो ICU के इंचार्ज हैं। ये 16 फरवरी 2017 की बात है। वो मुझे अपने ICU में ले गए और वहाँ पर कुछ केसेस उन्होंने मुझे दिए कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक महिला थी उसमें, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ट्विन प्रेगनेंसी थी उसको, और उसको वेंटिलेशन करने के बाद भी SpO2 नहीं बढ़ रहा था, ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। और उस दिन उनको ये डिसीजन लेना था कि इसको सिजेरियन करके या तो उसके ट्विंस को बाहर कर दें, इसकी जान बचाने, क्योंकि उन दोनों बच्चों की तो जान नहीं बचती थी। हमने इंटीग्रेट किया और 48 घंटे के अंदर जो पेशेंट 1 महीने से वेंटिलेशन पे थी, जो मैकेनिकल रेस्पिरेशन पर थी, वो 48 घंटे में वेंटिलेटर से ऑफ हो गई, बैठ गई। आज उसके दोनों बच्चे हैं, वो भी स्वस्थ है और दोनों स्वस्थ हैं। 10 दिन मुझे काम करने के बाद मुझे ये उन्होंने और डिफरेंट, ये 2017 की बात है। अच्छा जी। 2017 के बाद में 2018 आता है जी। यहाँ पर जब ये फैलना शुरू हुआ तो मैंने एम्स को इसका रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने कहा कि ऐसे ऐसे है, मेरे सारे एविडेंसेस हैं, इतने केसेस ठीक हुए हैं, ये मेरे पास डाटा है। जब मैं लेके गया तो ये लेटर 20 अगस्त 2018 एम्स ऋषिकेश ने एक्सेप्ट किया है प्रोटोकॉल, रिसर्च प्रोटोकॉल डेंगू हेमरेजिकल फीवर एंड न्यूनेटल जॉन्डिस। एंड लास्ट लाइन लिखी है, द प्रपोजल वाज रिसीव्ड विद ग्रेटिट्यूड इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड बाय प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना, जिसमें 3 लोगों के सिग्नेचर हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना है जो ये हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, और मीनाक्षी है जो कि आयुष की है। इसके बाद मैं अभी तक बैठा हूँ, यहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखते हैं और CCRS के डायरेक्टर से बात करते हैं तो कहता है कि आप तो क्रॉस CCR मतलब आप बताइए बढ़िया से। CCRS जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। जी। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है कि आयुर्वेद रिसर्च अलग है और एलोपैथी रिसर्च अलग है। एलोपैथी एक सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च करता है, आयुर्वेद एक कंपोजिट। अब मैं ये सोचता हूँ कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक ही रिसर्च मैटर 2 एजेंसीज कैसे कर सकती हैं? रिसर्च इज रिसर्च, उसको एक ही अंडर वन रूप होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक इनर कंपटीशन भी है, इंटरनल कंपटीशन है, एक राइवलरी है, एक जेलसी है। यदि कोई चीज़ को यदि आयुर्वेद एस्टेब्लिश करना चाहता है, एलियोपैथ देखेगा कि यदि आयुर्वेद हमसे आगे बढ़ जा रहा है तो वो टांग खींचेगा, वो उसको नहीं मानेगा। एक दूसरे को के प्रति एक स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, इसके कारण जो है आयुर्वेद उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये आप इस तरह से ऐसा देखेंगे? देखिए, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये दोनों अलग अलग सर्किल में घूम रहे हैं और सर्किल के बीच में बहुत बड़ा गैप है और माइंड जो है क्लोज है। जबकि साइंटिफिक क्वेस्ट जो होती है वो ओपन माइंड के साथ होती है, जस्ट लाइक इन स्काई, जिसमें सब चीज़ आके मिल जाती है। तो ट्रुथ तो एक ही होगा ना, ट्रुथ तो कोई अलग अलग नहीं हो सकते। सेंटर यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, उसकी रिकवरी है, उसकी हीलिंग है। जब हम इन्फ्लामेशन देखते हैं तो हमारी बॉडी नेचर है,
मैं कैसे कह दूंगा कि मेरी बॉडी अलग हो गई? तो जो उसके अंदर रिएक्शन साइटोकाइनिन है या इन्फ्लामेशन, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, वो सब नेचुरल एक रिस्पॉन्स होता है, जो जिसको हम अभी ये बात चल रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। अरे इम्यूनिटी तो हमारे इनहेरिट है, वी आर बॉर्न विद द इम्यूनिटी। इसको बढ़ाना कैसे है? इसको तो खाली मेंटेन करना है। लेकिन अब जब हम एलोपैथिक सिस्टम से इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है, आयुर्वेदिक सिस्टम से है, क्योंकि हम नेचर से ही जुड़े हुए हैं। अब जहाँ पे थिंकिंग अगर अलग अलग होगी तो साइंटिफिक क्वेस्ट नहीं हो सकती। अब एक CCRS है जिसके अंदर बहुत सारी ये भारत सरकार पैसा खर्च करती है। वहाँ पे वैज्ञानिक आयुर्वेदिक बैठे हुए हैं जिनको एक मॉडर्न प्रोटोकॉल का नहीं पता। वो अगर कोई रिसर्च करेंगे तो वो कौन से प्रोटोकॉल लेंगे, वो कौन से पैरामीटर लेंगे? क्या वो साइंटिफिक पैरामीटर नहीं ले रहे? वायरस का नाम आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ ज्वर लिखा हुआ। तो इस तरह की जो ये घटनाक्रम है, और इतना ज़्यादा इग्नोरेंस कहूँगा, फुलिशनेस कहूँगा, करप्शन कहूँगा, मालाफाइड इंटेंशन कहूँगा, क्या कहूँगा कि आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के KS दीवान जो हैं प्रोफेसर, आप सुन लीजिए ध्यान से जी हमारे भारत की विडंबना। जी। उसको जब मैं अपना क्लेम भेजता हूँ तो मेरी शिकायत कर देता है MCI को कि ये डॉक्टर क्रॉसपैथी कर रहा है ये डॉक्टर आयुर्वेद कर रहा है। हमने उनको लिखा कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं लेकिन आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते। अगर मैं किसी पेशेंट को ये कह दूं कि तुम फास्टिंग रख लो, नोबेल पुरस्कार एक फास्टिंग पे मिला है जापानी साइंटिस्ट को, या मैं किसी को गए हल्दी जीर कर रहे हैं तो आप क्या मेरे को रोक लोगे? और ये क्रॉसपैथी क्या होती है? अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, पंचभूत नहीं जानते हैं, क्या आप हवा, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इसको क्रॉस कर दोगे? क्या आपकी जल अलग होगा, वायु अलग होगा? तो ऐसे मूर्ख लोग, मैं कहूँगा मूर्ख हैं KS दीवान, माइक पे कह रहा हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे पे डिफेमेशन कर दे, क्योंकि मैं उसको एक डिफेमेशन नोटिस दे चुका हूँ जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये हमारे लिए विडंबना है। जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लिखा तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो सेक्रेटरी है राजेश कटोच, वो दोनों दोस्त हैं, और इन दोनों की दोस्तों की ये है, आज हाथ मिलाने का ख़त्म हो रहा है लेकिन सबके हाथ मिले हुए हैं, बाहर से हाथ जोड़ते हैं, अंदर से मिले हुए हैं। ये भी आप मतलब इसको भी एक आयुर्वेद की नज़र से देख रहे हैं? आयुर्वेद, हिंदुस्तान की संस्कृति के नज़र से देख रहे हैं? आयुर्वेद सत्य पे टिका हुआ है। सत्य होगा तो आयुर्वेद अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार, झूठ और पाखंड में बहुत नीचे स्तर पे गिर चुके हैं। इतनी बड़ी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। जब हमको ICMR से के पास गए, या मैंने PMO को भी लेटर लिखा, उन्होंने एम्स को लिख दिया। एम्स ने कहा कि हम इसको नहीं लेंगे, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जाएगा। आयुष ने हमारी MCI को शिकायत कर दी कि इसकी डिग्री कैंसिल कर दो। MCI ने मुझे बुलाया, संबंध किया, उन्होंने कहा इसका तो पूरा राइट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फिजिशियन आई कैन डू। ये इनका एथिकल कमेटी की मीटिंग आ गई मेरे पास, जहाँ पे मुझे एज ए क्रिमिनल मुझे खड़ा कर दिया गया। अब ये स्थिति में जब हम पहुँचते, लेकिन हम अपना काम करते गए, मुझको जितनी ये रुकावट आई वो बढ़ती गई। 2018 में जब एम्स से ये हो गया, उससे पहले मैं जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर आए श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे बड़ा उत्साह था कि 2013 में ये बहुत अच्छा काम शुरू हो जाएगा और आयुर्वेद हमारा पूरा हो जाएगा, और उन्होंने किया भी। सबसे पहला काम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया और एम्स बनाए, आयुर्वेद के एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस, फरीदाबाद में। उस एम्स इंस्टीट्यूशन के पास में किया अपने प्रोटोकॉल लेके। हमने कहा ऐसे ऐसे है और डेंगू आने वाला है, आप इसमें इंटीग्रेट कीजिए। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की एक कमेटी बैठी। उससे पहले हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर्ड था, ये सारे मेरे पास बैकग्राउंड थे। BHU का एक ट्रायल था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ये सब ठीक है, बट वी कैन नॉट डू इट बिकॉज वी डोंट हैव ICU फैसिलिटी, कि हमारे पास ICU नहीं है। लेकिन ये सही है, ये मुझे उन्होंने दे दिया। इसके देने के बाद मेरे को एक और, अब हम फिर दोबारा ICMR के पास गए, प्रोफेसर बलराम भार्गव, तो उन्होंने पहले तो डिस्कार्ड कर दिया। कोई भी आ सकता है, ये कह देगा कि ये पत्ती है, ये वो है, इससे ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, या हम कुछ नहीं कर सकते।
मैंने कहा सर ये सारे एविडेंसेस हैं, कैसे करेंगे? कि ठीक है आप इसका एनालिसिस करा लीजिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा सर आप करा दीजिए एनालिसिस, मेरे पास ये एविडेंसेस हैं। कि नहीं ये आप करा के ले आओ। और बाद में कहते हैं आर यू सेटिस्फाइड? आई टोल्ड हिम मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि दे आर डिफरेंट रूफ्स अंडर डिफरेंट रूफ, के दो छत, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग रिसर्च, तो रिजल्ट क्या अलग अलग होने चाहिए? इसका मतलब तो ह्यूमन भी बॉडी भी अलग अलग होनी चाहिए। एक संसार आपका हो गया, एक हमारा हो गया। जबकि ये तो जो कुछ भी आया है आज पृथ्वी पे, जो कुछ भी है, ह्यूमन माइंड ने तो कुछ आया है। ह्यूमन माइंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, और वो नेचर से ही उसने मॉलिक्यूल बनाया है। आज हम कोई पैरासीटामॉल या एंटी मलेरिया ड्रग या जो भी हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स, वो सब नेचर से तो आई हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ये यहाँ पे जड़ी बूटी लगी हुई है जिसका नाम है आर्थीमिसिया। ये आर्थीमिसिया प्लांट को चाइना ने एक एंटी मलेरिया ड्रग खोज ली उसमें से, जो कि रेजिस्टेंट मलेरिया में काम करती है। उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। तंजानिया में और अफ्रीका में इसको कोरोना की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ कैनाबिस है, ये कैनाबिस सटाइवा जिसको भांग भी कहते हैं, इसको सुना है मैंने। इजराइल में एंटी इन्फ्लामेटरी, वी हैव गॉट सो मैनी एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब्स जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और पूरा एलोपैथिक सिस्टम सिर्फ एंटी इन्फ्लामेशन के लिए ही खोज कर रहा है। तो ये सब घटनाक्रम हुई है। In fact, while we are listening to Dr. Saab's, the tale of sorrow and woe, I just recall a movie that I saw in course of my adulthood. I remember the name of the movie was Ek Doctor Ki Maut. I have seen that movie. The actors were Pankaj Kapoor and Savanna Ajmi. In that particular movie, it was shown the doctor who was so much inspired to invent a particular medicine for cancer, so far as my memory goes, because his mother had died on account of cancer, and running from pillar to post all throughout his life, he got nothing at the end. Finally, when he got a call from United States of America to serve at his very distinctive institute, finally he moved out of India. So you can well understand when Dr. Saab, Dr. Sri Bijay Verma ji is narrating his, tale of ordeals by fire, running from pillar to post, because this man has the acumen to serve both through allopathy, but he has the perception, and that perception is very much formed on the basis of the acute experience, on the basis of the realization that so many patients who were very much on the verge of death, they got cured because of his Ayurvedic treatment, but then in fact there is no respite for him. डॉक्टर साहब, एक बात मैं अभी आपको अच्छा आप कुछ बताना चाहते हैं, मैं एक बात आपको रोकूंगा। इनफैक्ट आई रिकॉल, मुझे याद है कि मुजफ्फरपुर में देयर वाज एंसेफेलिटिस, इफ आई रिकॉल, एंड दिस मैन डॉक्टर विजय वर्मा जी, lychee, because on account of consumption of lychee by so many malnourished children, and encephalitis it created havoc on the Muzaffarpur. And that time Dr. Bijay Verma, taking a unique initiative from Haridwar and Delhi, he had a clinic at Haridwar and Delhi, but on persuasion from Mr. B.K. Jha, this man, just for serving the cause of humanity, he rushed from Haridwar to Delhi and then to Muzaffarpur without knowing anything. And at that point in time, Dr. Saab got in touch with me, and I contacted Mr. Sanjay Kumar, the then principal, the health secretary of government of Bihar, and he gave me his email ID. I passed it on to Dr. Saab. Again, he had to knock his heads against the wall, but nevertheless, despite all the problems, all the predicaments that he finally encountered, he indeed there also he serves and cured so many children. डॉक्टर साहब आप कुछ बता रहे थे? मुजफ्फरपुर का एक्सपीरियंस ये रहा जी। जब आपने मेरे को कहा था, देन आई वेंट देयर, वहाँ गया मैं, और केजरीवाल हॉस्पिटल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी, वहाँ के सेक्रेटरी से मिला, दे वर ऑल एग्री। हमने कहा ऐसे इंटीग्रेट करेंगे और बहुत सारे बच्चों की हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अगर हम कम करते हैं, हम न्यूनेटल रेट कम कर देते हैं, डेथ मोर्टिलिटी, तो एक बहुत बड़ी ये बात होगी। क्योंकि एनकेफेलाइटिस का प्रोटोकॉल मैं सबमिट कर चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, और एनकेफेलाइटिस इतनी रेवेजिंग डिजीज़ है कि जो डेथ हो गई तो हो गई, ठीक है, लेकिन जो बच जाते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट इतना रहता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते हैं, वो स्थिति बहुत ख़राब होती है। लेकिन वहाँ पे 14 डॉक्टर्स थे, दे ऑफ एलोपैथी, दे ऑल अपोज्ड मी।
बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मुझे मिला। इन स्पाइट ऑफ दैट के सेक्रेटरी गेव मी परमिशन टू ट्रीट सम केसेस, आई गॉट एन उनका टेस्टिमोनियल, दे वर सेव्ड। उसके बाद भी मुझे नहीं। मिस्टर संजय जी जो सेक्रेटरी थे, उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई। उनका ठीक है, हम देख रहे हैं, एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी बनती गई। फिर उन्होंने कहा इसको आयुर्वेदिक जो डायरेक्टर है उनको भेज दिया। और डायरेक्टर से बात करी बिहार में, वो अभी तक कमेटी अभी तक नहीं बनी है, कोई एग्ज़ामिन नहीं हुआ है। और इन द मीन टाइम IMA उत्तराखंड जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की है, उन्होंने इस इंटीग्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड दे हैव गिवन मी ग्रेट ऑनर। आज मेरे ऑनर है डॉक्टर साहब, तो हमको भी दिखाइए। it is an award given to me यस यस by the allopathic system of medicine, by the IMA, which is the prestigious institution of our India. I have got central institution consent, I have got doctors consent, I have got MCI consent, and और मार्च 2000 अभी मार्च में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना का ये सिस्टम शुरू हुआ, देन आई रियलाइज़ कि जब हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो वाई नॉट कोरोना, बिकॉज कोरोना भी तो एक इन्फ्लामेटरी ये है, इन्फ्लामेशन ही तो है एक्यूट। और उससे पहले मेरा एक स्वाइन फ्लू का भी केस मैंने ठीक किया जलंधर में ICU में, उसकी एक रिकॉर्डिंग है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में या पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन से एक्यूट इन्फ्लामेशन में अगर वी हैव गॉट सम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स, व्हाई नॉट यूज़ इट। PMO के पास मेरे लेटर पड़े हुए हैं, उसमें मैंने 22 मार्च को उनको डिपॉजिट किया, खुद जाके ICMR को डिपॉजिट किया, एम्स को डिपॉजिट किया। आज तक मुझे एक कम्युनिकेशन नहीं मिला। ये हमारी स्थिति हो गई, हम पतन के बिल्कुल नीचे गड्ढे पे गिरे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ आपको मतलब इतनी बड़ी बात है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो एक पूछते भी नहीं है। आई एम आस्किंग देम टू यू कम एंड एग्जामिन मी एंड प्रूव दैट आई एम रॉन्ग। डॉक्टर साहब एक बात का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद का जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑल्टरनेट बना दिया, आयुर्वेद का भी। ये सब प्रधानमंत्री ने अपना दायित्व जो कर सकते थे उन्होंने किया। तो क्या प्रधानमंत्री को आप डायरेक्ट ब्लेम करेंगे ना? उनके जो PMO को लोग हैं जो आयुर्वेद को चला रहे हैं, ये सारे लोग ब्लेम वर्दी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास इतना समय कहाँ है। देखिए, हम यहाँ मातृ सदन में बैठे हैं जी, और मातृ सदन की गंगा को बचाने की बहुत बड़ी लड़ाई है जी, और उस लड़ाई के अंदर 2 ही आयाम है, पोल्यूशन एंड करप्शन। जी, ठीक है, भ्रष्टाचार जी, और प्रदूषण। जी, ये स्थिति हमारे व्यवस्था की है। उसमें प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी इच्छा भी होने के बावजूद भी धरातल पे वो चीज़ नहीं पहुंच पाती जो उनकी इच्छा है। हाउ कैन आई ब्लेम हिम? जब उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्रिएट की तो उनके माइंड में एक प्रोजेक्शन था। जी, जब उन्होंने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जी, इक्वलेंट टू, तो उनके माइंड में एक प्रोजेक्शन था। मेरे ही उसके ऊपर प्रेजेंटेशन पे ऐसा मुझे लगता है एम्स के अंदर उन्होंने एक इंटीग्रेशन बनाया और एम्स में भी अभी दिल्ली एम्स में ये है, ऋषिकेश एम्स में भी जो मैंने आपको दिखाया है कि इसके अंदर इन्होंने एक आयुष डिपार्टमेंट भी बना रखा है। तो वो जब खुद ही इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ सिस्टम कुछ लोग इसको नहीं चाह रहे हैं इंटीग्रेट करना, तो इसमें अगर ये मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी तो हो सकता है इसको ये आगे बढ़ाएं। और मैंने उसमें साफ लिखा है, जो मैंने प्रोटोकॉल दिया है, कि हमको लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना में 100% केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं तो जो डेथ हैं वो तो मुश्किल से 2% है। और अगर हम 97% रिकवरी हो रही है तो हमको 97% को ब्लॉक करने की ज़रूरत क्या है? वाई नॉट ए डेवलप एंड इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट टू सेव 2% ऑफ द केसेस। और मुझे पूरा विश्वास है विद बैकग्राउंड ऑफ माई एविडेंसेस, बिकॉज इन माई क्लिनिक आई हैव एविडेंस फॉर नियरली 2000 केसेस ऑफ वायरल डिजीजेस। आपने अभी तक क्या कोई कोरोना देखिए, कोरोना को तो अभी कोई अलाउ भी नहीं करेगा। जी, वी आर नॉट अलाउड टू ट्रीट कोरोना एट ऑल। और कोरोना कोई बीमारी इतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसमें कोमॉर्बिड हैं। उसके साथ में जो बहुत सारी डेथ हो रही हैं उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक लंग डिजीज़ या कैंसर, जो ऑलरेडी एक स्टेज पे आ चुके हैं। जी, लेकिन अगर इसकी वायरुलेंस होती है, जस्ट लाइक नहीं बोला, अगर यंग उसमें भी आ जाता है तो हमारे पास एक इंटीग्रेटिव सिस्टम है जिसको कुछ नहीं करना। सिर्फ उसमें हमने कहा है कि आप एक इंटीग्रेटिव वो बनाइए, जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने एक टीम बनाई थी जिसके अंदर 5 आदमी एलोपैथी थे, 5 आयुर्वेदिक थे, 10 की, तो एक टीम बना के एक इन्वेस्टिगेशन एक ये कर दो उसको। अच्छा डॉक्टर साहब एक बताइए, ये जो कोरोना पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं,
या साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि गंगा की पानी जो है, क्योंकि हम लोग इतना सुंदर गंगा वातावरण में बैठे हुए हैं, गंगा का पानी से क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है कोरोना का, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आयुर्वेद जो है ना, एक गंगा वो आयुर्वेद का एक हिस्सा है। गंगा इज़ नॉट ए होल आयुर्वेदा। आयुर्वेद जो है पूरी नेचर को लेके चलता है। गंगा के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ गंगा पोल्यूशन में भी लड़ाई महासदन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 20 साल से हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ लड़ी है। तो गंगा के अंदर बैक्टीरियोफेज हैं। गंगा का पानी अमृत है, इसीलिए कहा गया है। बीमारियाँ नहीं होती गंगा से। कॉलरा के समय में एक जब हुआ था तो कॉलरा में ये देखा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि गंगा के किनारे जितने वो लोग थे, जो बॉडीज़ थी, वो सड़ती नहीं थी। तब से ये पता चला कि गंगा के अंदर एक बैक्टीरियोफेज है। और तो प्रोफेसर जी डी अग्रवाल साहब ने भी कहा है कि 13 जो है बैक्टीरिया, इस तरह कुछ उन्होंने कहा है टेक्निकल टर्म्स में। 17। 17। हाँ, और भी बहुत कुछ होंगे। अभी उसका तो एक्सप्लोर किया ही नहीं जी। लेकिन अगर मैं इसको जो पंचकर्मा इंटीग्रेशन किया है, अगर और थोड़ा टेक्निकली आप जाएंगे स्पेसिफिक, 2 प्रोसेस लेते हैं, स्नेहन और बस्ती। स्नेहन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द हर्बल ऑयल्स all over the body and the basti per rectal. So in first case I used Ganga Jal in per rectal in a interstitial lung disease. And any scientific quest जो होती है वो that depends on the first stage is a hypothesis. But I am not speaking on the base of hypothesis only. I am speaking on the base of concrete evidences which I am having with me. तो गंगा जल उसमें हेल्प किया? यस, आई यूज इट। अच्छा, अभी ये किया है तो बट द रूट इज पर रेक्टल। रूट इज पर रेक्टल, लैटिन के रास्ते देने का है, नॉट ओरली। वो तो आप मुझको भी दे रहे हैं 2 दिन से, मैं भी उसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी अंदर से पसंद है। जी जी। सो अच्छा, दैट सिस्टम इवन इन न्यू नेट्स आई एम यूजिंग इट। दस प्रोटोकॉल फॉर द न्यू नेटल jaundice. You see, the baby is born just now and he is having low enzyme activity of the liver and there is physiological jaundice. In that physiological jaundice, we used to give the phototherapy. Lekin after that, there is no need of phototherapy. In my clinic, I am using nearly 97 to 98% per rectal application of medicines and treating variety of the diseases. Treating bacterial infection, viral infections, prematurity, malnutrition, septicemia, encephalitis, growth failure, you name the disease, even this rheumatic fever. On that basis, Kawasaki disease. All these through integral process. Yes. That is what you have been espousing and championing. Yes, because I am a trained person in allopathic system. Right. And I know the support of the life. If I need, I certainly use the antibiotic. If I need, I certainly use the oxygen. If I need. डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई आदमी मृत्यु पर के या कोई ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, वैसे में सिर्फ एलियोपैथी काम आएगा, आयुर्वेदिक का वहाँ पर कोई रोल नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डिजीज़ हैव सो मैनी स्टेजेस। डिजीज़ की कई सारी अवस्थाएं होती हैं। इनिशियल अवस्था के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर कहीं से जनरेट कर रहा है। अगर आप वहीं पे इंटीग्रेट करते हो, उस ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाते हैं, तो वो स्टेज आएगी नहीं सर्जरी की। जी। तो सर्जरी तो बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत ही नहीं है। एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, उसको हम पर रेक्टल देते हैं सपोज, और इंस्ट्रक्शन उसका ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ लेप्रोटमी, ओपन ऑफ द एब्डोमेन एंड रिपेयर इट। तो दिस इज द टिश्यूज, दे कैन मोल्ड विद द नेचर। डॉक्टर साहब, अब जो है आप थोड़ा एक मैसेज ये दीजिए कि अभी कोरोना के टाइम में, चूँकि आप इतना एक्सपीरियंस्ड हैं, आप दावा कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो आप देश को, पूरा विश्व को, मानवता को, मानव जात को जो किसी संकट के घड़ी से गुजर रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर आप किस तरह का एश्योरेंस देना चाहते हैं कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि मैं ठीक कर सकता हूं? ऐसा आप किस बेसिस पर और किस ऑथोरिटेटिवली क्या कह सकते हैं इस पर? देखिए, मेरा क्लेम तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसको अभी तक एग्जामिन नहीं किया गया, और मैं भारत सरकार से सबके भले के लिए कहूँगा कि इस क्लेम को एग्जामिन करो। जब मेरा क्लेम एग्जामिन हो जाए और साइंटिफिकली लगे लोगों को, जो साइंटिस्ट हैं, कि यस इट इज़ इफेक्टिव, तब जरूर हमारा क्लेम एस्टेब्लिश होगा। आई एम फुली कॉन्फिडेंस ऑन माई बेस ऑफ द एविडेंस डाटास दैट इट इज़ गोइंग टू बी, ये दिस इज़ माई क्लेम।
जब तक एक टीम नहीं बैठेगी, एक साइंटिफिक एक कमेटी नहीं होगी जो मेरे को एनालाइज करे, मेरे को देखे, मुझे पूछे, 10 चीज़ क्वेश्चन दे और उसका मैं आंसर दूं और सेटिस्फाइड हो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। आई एम यूजिंग आयुर्वेदा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंशियंट साइंस। दूसरा ये संदेश तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। सेकंड जो संदेश है वो आयुर्वेदाचार्य को लिए हुए है। आयुर्वेद हमारा भारत में इतना नीचे क्यों गया? उसका एक कारण है कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और प्रैक्टिशनर दे फॉरगेट द प्रिंसिपल। और रिसर्च भी नहीं हुआ आयुर्वेद पर। रिसर्च तो हुआ ही नहीं, सबसे पहले वो प्रिंसिपल भूल गए। प्रिंसिपल क्या है? ये आयुर्वेदिक एक डॉक्टर क्लेम करता है कि गिलोय खा लो, पपीते का पत्ता खा लो या ये खा लो, ये क्लेम सबसे ज़्यादा नुकसान है जी। क्योंकि आयुर्वेद एक सम्मिक है जी। आयुर्वेद एक गुणों को ठीक करता है। आयुर्वेद की अगर हम एक यहाँ से लेंगे, पूरी अगर ब्रह्मांड की जो नेचर है वो 3 गुणों में है, सत्व रज और तम, जी। वात पित्त और कफ, जी। जो आयुर्वेद का है। जी। तो एक ही प्रकृति का जो हम थोड़ा सा हिस्से लेंगे वो 3 गुणों में है। किसी एक पत्ती के अंदर 3 गुण कभी आपके नहीं ठीक हो सकते। तो आपके अंदर उन गुणों को ठीक करने के लिए मुझे एक कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन चाहिए। उनकी संख्या 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। किस समय देनी है? आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे आयुर्वेद में इतना सूक्ष्म साइंटिफिक ज्ञान है कि जो पर रेक्टल हम देते हैं, अभी इसकी बात हो रही है बैक्टीरियोफेज की, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर पूरा का पूरा एक बैक्टीरिया फ्लोरा है। उस फ्लोरा में दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जो कि हमें बीमार करते हैं, नॉन पैथोजेनिक जो हमको तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो अगर एस्टेब्लिश रहता है तो हम लोग हेल्दी हैं। सेम वायरस के साथ भी है, बैक्टीरिया के साथ भी है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में अगर मैं कहूँ कि इसको हटा दो, एक एंटीबायोटिक आपने दी और बैक्टीरिया को सब खत्म कर दो, इट्स नॉट गुड। तो बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मॉलिक्यूलर देने से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम एक बैलेंस फूड दे देते हैं, जो आयुर्वेदिक सिस्टम क्या है, इट्स ए फूड, इट्स ए नेचर, लेकिन हम गुणों के हिसाब से चलना चाहिए। तो मेरा आयुर्वेदिक जो साइंटिस्ट हैं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं, उनसे यही है कि वो क्लेम करना बंद करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या ऐसा लगता है कि राजीव दीक्षित जी के चले जाने से आयुर्वेद को लॉस हुआ है देश में? देखिए, लॉस तो वो हुआ है। चाहते थे कि पूरा देश जो है एकदम राजीव दीक्षित का जो माइंड था जी। वो बिल्कुल मॉडर्न साइंटिफिक माइंड था। जी। उनके पास डेटास थे, जी। उनके जो रीज़न थे वो सारे रीज़न ट्रुथ पे थे। जी। तो उनके जाने से तो बहुत नुकसान हुआ। जी। लेकिन जो वो लाइट जला के चले गए वो बुझेगी थोड़ी, ठीक है, ठीक वो है। तो जलेगी और आगे भी जलेगी। जी। लेकिन जी। आज मेरा ये इंटरव्यू गंगा के किनारे हो रहा है और मैं आपको दोबारा से धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे राजीव दीक्षित के साथ हुआ था वैसा मेरे साथ भी हो सकता है। जी। इसीलिए पूरी भारत सरकार इसको रोके हुए है, क्योंकि अगर हम एक्यूट फेज के अंदर आईसीयू में आयुर्वेद के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जी। जी। हम नेचर की तरफ दौड़ेंगे, जी। हम प्रकृति को बचाएंगे, जी। हम गंगा को बचाएंगे, जी। हम नदियों को बचाएंगे, जी। हम हवा को बचाएंगे, हम पंचभूत को समझेंगे, हम माइंड को समझेंगे, हम बॉडी को समझेंगे, हम जो समाज की लाइफ है, जो एक यूनिफाइड फोर्स है, जो एक प्राण है, उसको समझेंगे। और जब ये समझ आ जाएगी तो हमारा विश्व सुधार की तरफ चलेगा, आनंद की तरफ चलेगा, स्वास्थ्य की तरफ चलेगा, परमानंद की तरफ चलेगा। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब. So you just heard Dr. Vijay Verma, in fact, was sharing his versatility. Being an allopathic doctor, he also blended Ayurveda with it, and with a very composite experience, composite knowledge, he brought such a huge change. And as he says, and as he expresses his skepticism and apprehension, that given the sort of experience that he claims to possess, and if at all he puts all that to application by the consent of the government of India and with all the Ayurveda institutions, obviously there will be a tremendous transformation of the society. And as we all know, the corona, which is the biggest crisis, that entire society has been engulfed by it. And today there was always a struggle between the man and the nature, because Rishi Aurobindo, one of the greatest thinkers of all time, had written in his classic, that is the Life Divine as well as the interpretation of Bhagavad Gita, that there has been a constant struggle between the man and the nature, whereas the nature always teaches men to struggle against it and to stand up on its feet. So men
by mistake or through hubristic presumption, men thought of controlling the nature. And today the scenario that has been unfolding, across the globe, it is only on account of men, presuming themselves to be the conqueror of nature. And coronavirus has taught to the mankind that men can never be superior to the nature. Men cannot think of making nature subservient to its beck and call. So therefore, we need a perfect balance. And men like Dr. Bijay Vermaji, who has been exponent and exemplar of practicing both Ayurveda and that is allopath with distinction, and he deserves a chance, as he says very candidly that like what Rajiv Dixit, the fate that ultimately Rajiv Dixit met with, he may also have to meet with the same, because once the system is changed, our system is changed topsy-turvy, obviously it has got adverse consequences for him, but he is least bothered. He needs India to stand up on its feet. It was a clarion call by Swami Vivekananda, which has been repeated by Honorable Prime Minister of India, that let Bharat be the Vishwaguru. And we, in order to make Bharat Vishwaguru, we have to strengthen Ayurveda. We have to strengthen everything that is very much attached with the root of this country. And Dr. Bijay Verma is an exemplar and exponent of that Ayurveda. He wants India to to stand up on its feet. He wants India to practice, that is Ayurveda, at a larger scale, because Ayurveda has a tremendous potential to bring a quicker improvements in the health of the entire nation. The way Rajiv Dixit had envisaged, this man is going to follow in his footsteps and make India free of disease and all that. So, in order to make India the Vishwaguru, I also call upon the Honorable Prime Minister that men like Dr. Bijay Verma, who is so desperate to see India stand on its feet, to see India give a clarion call to the entire mankind, that again we have risen from our slumber with our own ancient innovation, that is the Ayurveda. So let Prime Minister of India and all the intelligentsia class rise up to the clarion call of Dr. Bijay Verma, who does not speak in air, but he has got all his experience and all his realization, complementing his claim, complementing his observation, complementing his statement. So therefore, I once, it was a very, very cherishable conversation with Dr. Bijay Verma, and with a very, earnest appeal to the entire, fellow citizens of this country and to the mankind as such, that let mankind rise to the clarion call of Dr. Sri Bijay Verma ji, and bring about a tremendous transformation that the nation is beckoning all of us towards herself. So with all these words, I once again thank Dr. Bijay Verma ji. This is Vivekanand Jha, an author of Yes, I Am Bihari, The Living Legends of Mithila, the book on Prime Minister, the Delhi Bacon Saga for Damo, launched by Prime Minister in the Vibrant Gujarat Education Summit. And of course, currently, very recently, I wrote another book, Making of Narendra Modi and Making of Jawaharlal. I want Prime Minister, it is my earnest call as an author of 3 books, only Indian to have written 3 books on Honorable Prime Minister, that His Excellency should give a very earnest attention to such people like Dr. Bijay Verma, who wants to step into the shoes of Rajiv Dixit ji and bring about the transformation of the face of Bharat Varsha in order to make Bharat Varsha Vishwaguru. So I thank all of you, Dr. Bijay Verma ji, once again, and to all my viewers from across the world for being with us thus far. Thank you. Thanks to all of you.